professor in the Department of Horticulture of this university. Has been the head of department, holds many accolades to his credit No. for having national and international projects. A man of distinction. इतने काबिल आदमी कि मेरे पास शब्द तो नहीं है मुझे बस ज्यादा बस 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 उनको बस अप्रिशिएट गुड करने के। एनफ गुड एनफ गुड लेकिन एनफ इतने इतने मैं बहुत कम लोगों के बारे में बोलता हूँ, तो आज तक किसी बारे में बोला मैंने बोलो, आज बहुत कॉमेडी की बात नहीं बोला होगा, इनके बारे में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इनको वास्तव में आई रिस्पेक्ट हिम पर्सनली because of his knowledge, wisdom, his gestures and his kindness, है ना? आप कक्षक को रात में 11-12 बजे कभी भी फोन करिए for any trivial reason, कक्षक will take the phone, he will call you back and he will do the needful, है ना? तो सिर्फ एक अच्छे प्रोफेसर ही नहीं है, he is also a very kind-hearted person, बहुत काबिल लोगों में से हैं विश्वविद्यालय के, ठीक है? और he has been instrumental settling that model floriculture center, जहाँ पर हम लोग उस दिन गए थे ना विजिट के लिए, उसमें भी और तमाम और ऐसी चीजें हैं जिसको इतने कम समय में नहीं बताया जा सकता इनके बारे में। इस वजह से ही सर मैंने आपके क्लास में इसमें पीजी के 1 वालों को बैठा दिया, कम से कम ये देखेंगे कि डेफिनेटली यस या क्या आएंगे क्या क्लास के केस में, या ठीक है ना? ओके, thank you so much Dr. Ashutosh. We have been colleague I think since 2006 and then okay fine, thank you so much for giving this nice introduction. Today we are here for again the production technology of cut flowers. I think none of you doesn't like any flower. Is there anybody who doesn't like a flower? Everybody likes a flower. So that is favorite and that is the reason why I'm standing before you. And then the climatic conditions prevailing right now that doesn't allow you to go out. If you cannot, how the flowers can? They are very delicate, right? They are very tender and then until unless they get a very good climatic conditions to grow, they are not going to respond to the best of their potential. Same is the case as you people are. If you are sitting outside right now, probably none of you can concentrate on anything. But then the moment you are going to get a conducive environment, air conditioning that facilitates it, your efficiency increases, right? Same is true with every creature and same is true with the flowers also. They are highly delicate and then they require the most care. And yesterday also we were talking of that these are the commodities that are not meant for eating purpose, but they are to please ourselves, right? There is none occasion where flowers are not being required. You all know, right? Right from the birth of a child to the death of anybody and then all sort of occasions, whether it is political, religious, ceremonial, anything, none of the functions are complete without the use of flowers. Our culture is like that, isn't it? Right from the era of civilization when it started that people started using flowers for worshipping purpose. Later on, with the changing conditions, changing requirements, that took a shape of trade. You being a student of CABM and then other faculties who are again means into business, right? Everything is a business. So for you people, it becomes very important to know what are the important tips to grow the flowers or what are the quality parameters that are required for accelerating, for giving momentum to any business. Maybe you are going to be associated with any of the companies who are into floriculture because there are very many agri based companies where you are going to look for your future and among other commodities floriculture is one of very important parameters, right? If you look of the countries like Netherlands, the whole of the economy lies or rests with the floriculture trade. You might have studied that thing also, yes or no? So if you categorize whole of the flowers, you will find that there are basically two types. We say from now I should say commerce point of view or trade point of view. One is the loose flowers, जिसकी आप माला बनाते हैं, वेनी बनाते हैं, गजरा बनाते हैं या एसेंशियल ऑयल वगैरह निकालते हैं जिसमें कलर है, कलर जिसमें है उससे आप डाइज भी बनाते हैं, जिसमें खुशबू है जैसे देसी गुलाब हो गया या बेला हो गया, you get essential oil out of it and they are very expensive.
They are being used for very many industries. And the second category of which we are going to talk today is the cut flower. The world trade rounds around this cut flower business. Is there anybody who knows what is a cut flower? How it is different from the loose flower? Anybody? Yeah, please. Good. That's what I'm saying. The flower with a stem or a stalk is a cut flower. And the examples could be Rajnigandha, rose, carnation, gerbera, gladiola, tuberose, then anthuriums, orchids. Even when the trade is, when the demand is, you try to sell the things which are basically the loose flowers. And when marigold is being harvested with a stem, at times they are being used as a cut flower too, but then it is not a real cut flower, right? The 2-3 major quality parameters that is required irrespective of any cut flower, it is, one is जो आपकी liking होती है कि color should be very good, size of the flower should be big, right? यही तो देख करके आप attract होते हो किसी flower को. What else? The stem length. The longer the stem length is, the better are the prices. With the same color of the flower, with the same size of the flower, if there is difference in the stem length, and that depends on the production technology, how you are producing. So why not to make the efforts to go for the longest stem, but every time you cannot get, isn't it? There are so many factors involved. We will be talking of those important things. We cannot cover the whole of the crop, and then even a single crop, whole technology in 1 hour or so time. But then I will try to give you some important tips that can be useful for one flower or the other at one stage or the other, right? Means you cannot be master of everything, but then if you are Jack, even that will work because your way of approach in the business will be little bit different. अगर आपने इतना ही कह दिया कि भाई थिनिंग की थी कि नहीं की थी, डिशूटिंग की थी कि नहीं की थी, या डिसबर्डिंग की थी नहीं की थी, अगला समझ जाएगा कि ही नोज और शी नोज द टेक्निकलिटी ऑफ द थिंग्स, राइट? और उतनी चीज से उस सारी क्वालिटी पैरामीटर्स को रेगुलेट करना बिकम्स वेरी इजी. ठीक है, तो वी विल टॉकिंग ऑफ दैट थिंग. दीज 2-3 पैरामीटर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इज द कलर, size of the flower, stem length, straightness, turgidity is again important. अगर आपकी स्टेम की उसकी जो स्टॉक है अगर टेढ़ा मेढ़ा है, may not be preferred in the market, right? So you need a straight stem length. For that, in many of the crops we do many of the practices, right? So those are the things we will be taking care of, and then because of this type of conditions, it becomes very important to grow these flowers under protected conditions. Yeah, please. Yeah. कल तो हो गया था भाई, क्या बात हो गई? या आई थिंक इट इज कमिंग अप. आप तो यहीं बैठ जाओ. ही हैज बीन हेल्पिंग मी यस्टरडे आल्सो. यूएसबी का या लोकल फाइल्स में चले जाए क्या? या आप ही बताओगे कहाँ पे पहुंच गई? ज्ञान या लेक्चर 2 या Sure. His one finger is good enough, my 3 fingers are not working. So that is the thing, with that are the tips that are required. So producing high quality cut flowers is a challenge under open condition. Now you can see today, if that type of rains are there, that type of hot temperature is there, light is not proper, definitely your quality is going to hamper. And until unless you are going to provide a uniform conditions, it will be badly affected. So that is why protected conditions they are required for growing many of the crops, but the flowers definitely, right? Controlled environment improves the stem length,
flower size and vast life, because you just need the flower to be with you for almost 5, 6, 7 days. And they are so tender that if it is not good, definitely the next day the flower will senescence. There will senescence the flower. And you will think that, oh, I have wasted my money. So everybody wants that if I am purchasing it today, maybe it should remain with me for 3, 4, 5, 6 days, right? In the vases or elsewhere. So that also becomes important, and that also governs with the production technology as well. Because what it is getting throughout the production period, it will be reflected in the post harvest life as well, right? The nature of the crop that yesterday we talked of, which type of crops we can grow. Maybe marigold I talked, desi gulab I talked, but they are not good crops for the protected conditions because economics may not match with the things. Because we need high value, low volume crops, which are you are getting more out of it, more money with a less space that is required, right? Now, if we talk of the need why this is required for better quality produce, because they require optimum range of temperature, not only the day temperature, even the night temperature, they are equally important. If there is difference, variation, even in the night temperature, you will find that your quality gets hampered. So that is why diurnal temperature conditions, they are very important. So better quality of produce, it is related to that. Round the year cultivation, because every time yesterday again I talked that whenever you go for any consignment overseas, they need the consignment to be received for a period of say 5 months, 6 months, 7 months. And in India, we say that yes, we have got different type of climatic conditions, but the conditions they prevail for maybe 3 months, maybe 2 months, maybe 4 months, maybe 6 months. Summers at times expand, rainy season excuses, but then today nowadays it has expanded. So planning fails just because of those uncontrolled climatic conditions. And to have a control, we need that type of protected structures where we can manipulate the climatic conditions from fully controlled to at least semi or partially controlled conditions, depending on how much you can invest and what is your target. If it is a local target, maybe even the B grade, C grade, they are good enough, but for export, definitely you have to go for A or B grade, right? Because getting almost A grade is difficult. You are studying almost 5, 6, 7 courses in this semester. Getting A grades in all the courses, probably it will be a little bit tough. But then, if conditions are good, if you are reading regularly, definitely you can get the A grades too, right? So that is the thing that has to be taken care of. Again, germ plasm is very important. Whenever we talk of protected conditions, those who are into cultivation or say production only may not be directly involved with the germplasm, but for a breeder who is going to breed every year new and new varieties, because the industry is very dynamic and every time they require a new thing in the market. जैसे आजकल आप लोग देखते हैं मोबाइल्स, गाड़ियां, shirts, everything. You want something different, isn't it? अरे मेरा मोबाइल तो डिफरेंट है, मेरा तो आईफोन है, 16 आ गया, 16 प्लस आ गया, प्रो आ गया, आई डोंट नो, वीवा में एंड देन सारों में चीजें हैं, बिकॉज द डिमांड इज, वरना तो 13 भी ठीक ही था. लेकिन आज बच्चे से कहो तो 13 नहीं लेना, मुझे तो चाहिए 16 प्रो ही, isn't it? How many of you prefer 16 pro? सारे ही मना भले करो, हाँ भले ना कहो. Everybody, at least my daughter says, पापा ये नहीं चाहिए 13 वाला, 16 ही चाहिए. That is the thing. Every time, even now you talk of flowers, you talk of vegetables, रोज वही सब्जी बन रही है, रोज मस्त में वही बन रहा है, आदमी का मूड खराब हो जाता है कि यार डेली वही बन रहा है. यू वांट समथिंग डिफरेंट. आप प्लांट्स खरीदने जाते हो अपने घर के लिए, आप कहते हो यार कुछ अच्छी चीज दिखाओ, कोई नया दिखाओ, which is different from my neighbor at least, because that too is a point of competition, I should say. So you need something different, and same is here in the cut flower business or floriculture business. You want something new. उसी के पैसे हैं. Protection from biotic and antibiotic stresses, you all know there are different type of
diseases, pests, and then these climatic changes from which the plant has to be protected. For that purpose, we have to have the protected structures. The crops that we can go for is variety. Roses, carnation, gerbera, chrysanthemum, lilium, anthurium, orchids, they are the common crops which are being grown world over under protected conditions. And with the changing economic say parameters, even in your country, in our country, we are shifting from open conditions to protected, just because there is demand for the quality, not only from the overseas market. Those who are the players in the overseas, they look for those type of targets, but even in the domestic market, when I came down here, I think शायद रुद्रपुर में, हल्द्वानी में एक आधे ही शॉप्स हुआ करती थी जहाँ यू कैन गेट द फ्लावर्स. आपका तो टाइम डिफरेंट है. हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो शायद शहर में ये होता था कि मंदिर के पास चले जाओ, वहां फ्लावर वाला मिल जाएगा इफ यू नीड द फ्लावर्स. But today, you go to any big or small city, I think almost like miles distant, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे, you will find a florist shop who is selling the flowers under air conditioned shops, isn't it? That means the demand is like that, and they are getting those type of things. So okay, fine, we'll be talking of very little things. मैं cannot, वही मैंने आपको कह दिया कि I cannot teach the whole of the crop production technology in one, even for a single crop. I'll give you some basic tips that, if you remember, may be helpful at any stage of time. Maybe अगर आप कुछ नहीं, ट्रेड में भी नहीं आते, अपने घर में ही आप लगाते हैं, when you are going to live in a big or small city, when you are in the profession, maybe you will be looking for those type of things. तो अगर आपको वो टिप्स थोड़ी सी भी ध्यान रही, हाँ यार कभी ये बताया था रोजेस में ऐसा कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, या कार्नेशन में या जरबेरा में, तो दैट कुड बी हेल्पफुल, और यू मे हेल्प to somebody else who is into the production system or say in the business, right? If you talk of roses, don't go for which variety, which thing, they are available in the market. All new varieties, if you Google any company who is into production of the planting material, you will find that they will show all type of varieties with all characters. What will be the color of the flower, at what time it is going to come to flowering, what will be the average stem length, what will be the production capacity, and what is the age of the plant at which or till which it can be in the production system, right? So you can choose every time whenever somebody comes to you, or you have got an option to go for multiple say plants, I will suggest you to request anybody or to choose for multiple colors. Don't confine to a single variety, don't confine to a single color. Though there are players who confine to a single color, single variety, but then that type of quality production system you should have. Otherwise, for an average farmer, for an average say a businessman, it is always advisable to go for multiple varieties. Now, if a company says I have got this varieties, you may not be knowing what type of color it is, what type of say stem length it is. I'll say for a illiterate type of person or those who are new to this business, you say that you choose with the color of the flowers, be it gerbera, be it carnation, be it roses, anything. You say you go for red color, pink color, yellow color, white color, likewise. Means all those colors, they are representing different varieties, they have got their own performance level in the same conditions. Now suppose if you are going to convert this room into a protected conditions for poly houses, maybe it is good for somebody up 25 degrees centigrade, may be good for most of you, but some of you might be feeling कि यार ठंडा सा लग रहा है, कुछ को लग रहा हो गर्मी सी लग रही है, थोड़ा कंजस्टेड ज्यादा हो गया है तो थोड़ा सा और दिक्कत बढ़ रही होगी. तो that type of reactions, they are obvious from the plants itself. Some may be rigid, some may be hardy, they will perform still better under the little bit of upward conditions, but some will be sensitive. So on an average, with the different colors, different varieties, your production will be good. Instead of having a single variety, say if
some disease comes, maybe it is going to ruin whole of the crop. But then if there are different varieties, maybe the performance level will be different. Corona चल रहा था, everybody was knowing, हर कोई था, maybe many of you were affected, many of you were not affected. किसी को केवल खांसी होकर रह गई, किसी को हल्का सा फीवर होकर रह गया, किसी को 10 दिन तक फीवर रहा. Your level of tolerance, your level of resistance is different. Same is true with the plant. For any type of biotic or abiotic stress, those things comes into rescue. So for a beginner, for anybody, multiple, and then that is the demand of the industry also. जब आप मार्केट में जाते हैं अपने फ्लावर्स को लेकर के, you will find that people look for multiple colors, because हम लोग के यहाँ जो बुके बनता है, normally you will find that it is a mixed type of bouquet. So you require all sort of colors. And then our many of the say functions, they need a specific type of color. होता है ना, पूजा पाठ है तो व्हाइट कलर मत लेकर के आना, ब्लैक कलर मत लेके आना, इवन कपड़ों के लिए कह देते हैं व्हाइट मत पहनना, ब्लैक मत पहनना, और कुछ जगह में केवल व्हाइट और ब्लैक की ही डिमांड होती है. कभी कहीं पे डेथ हो जाती है तो कहते हैं रेड और इस तरह के कलर्स नहीं चाहिए. तो इट इज वेरिएबल, right? So if you got a multiple type of colors with you in the production and then in the market, definitely you have got a better edge than the others. So that thing is required. The temperature requirement, the humidity requirement, that are very important, specific to a specific crop. We have to take care to the best of the possibilities. क्योंकि अगर हम ये कहें कि fully control करना है, फिर तो you can regulate with the automation system, it is fine. लेकिन जो हम लोग के नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउसेस हैं या फैन पैड सिस्टम वाले हैं, उस तरीके के हैं, उसमें पूरा कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है. बट देयर आर मैकेनिज्म. सपोज हमारे को ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, दिस इज इररिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रॉप. ठीक है, ह्यूमिडिटी आपको कंट्रोल करनी है, बाहर बहुत गर्म है, हम ये कहते हैं कि ओवरहेड स्प्रिंकलर्स जो है उसको आप ऑन कर दीजिए. मिस्टिंग अगर होगी तो एक कूलिंग इफेक्ट आएगा, ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा. दैट विल बी गुड फॉर द प्लांट टू ग्रो. ठीक है, बट देन दैट कैन ग्रो, दैट कैन बी डन टिल द फ्लावर्स आर नॉट इन फ्लावरिंग स्टेज और द बर्ड्स दे आर क्लोज्ड. The moment the buds have opened or flowering has started, this type of practice may be harmful because the droplets will come on the flowers and they may cause some sort of decay. तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ है तब तक तो हम ये चीज रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर वो नहीं करेंगे. हम भले इरिगेट और करें या कुछ और सिस्टम करें, या कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा पॉली हाउस है उसके ऊपर हम रेन करा देते हैं. आपने कई बार अगर देखा हो या नहीं देखा होगा, इंडस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि पॉली हाउस के ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं. उससे क्या होगा, जब पन्नी के ऊपर ही आपके पानी पड़ता रहेगा धीरे धीरे, तो वो चीज भी थोड़ी सी कूलिंग इफेक्ट लाके देता है. ठीक है, शेड नेट्स, पॉली हाउस के अंदर हम शेड नेट्स लगा देते हैं जिससे कि थोड़ी सी कूलिंग हो जाए. तो दीज आर दी वेज हाउ वी रेगुलेट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड इवन द लाइट, which is again very important in some of the crops, particularly say roses. If we talk of chrysanthemums, they respond tremendously. और कैसे उसमें होता है मैं भी आपको दिखाऊंगा उस चीज को. नेक्स्ट वी कैन गो फॉर, या प्लीज. कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इट इज बीइंग आर्टिफिशियली गिवन. आज के टाइम में टेक्नोलॉजीज दे आर अवेलेबल. अगर आप कभी बाहर जाने का मौका मिले, पहली टाइम जब मैंने भी देखा था तो इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी. Those who are into protected conditions in Netherlands, the big players, they have got their own system to raise the electricity, and with this system by burning, and then with the help of this polythene strip, they have got tunnels they have made inside the polyhouses, and through those tunnels they provide the carbon dioxide. So artificial carbon dioxide, it is very important. Many of the crops, good question, क्योंकि ये चीज बड़ी कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है. ठीक है, या प्लीज. हाँ, लॉजिंग जब भी होगी तो हो सकता है स्टेम में कहीं से भी वो लॉजिंग हो जाए, लेकिन बेंट नेक मींस कि केवल हमारा जो है फ्लावर का बड वाला पोर्शन जो है वही नेक बेंट हुआ है. ठीक है, शायद इसमें कोई फोटो होगी, मैं दिखा दे दूंगा. ठीक है, soil sterilization again it is must for
all the crops under protected conditions. We have to sterilize the soil. That is a thumb rule. क्योंकि the crop may go for 3 years, 4 years. Roses they may go for almost 8 to 10 years. और वो कंडीशन बाद में उसको रेगुलेट करना मुश्किल होता है क्योंकि देयर आर वेरी मेनी माइक्रोब्स व्हिच इन्फेक्ट badly, and for that purpose we have to sterilize the soil using formaldehyde and their treatment system with which we have to sterilize it. Once it has been sterilized, it is good for planting for longer period. Infestation may come anytime, but then we have to take the precautions. ठंड आ गई है तो ऐसा तो नहीं होता कि टी शर्ट में घूमना शुरू कर देते हैं, ठीक है यार, हो सकता है ठंड लग जाए तो एक जैकेट डाल लो, एक स्वेटर डाल लो या कुछ चीज कर लो अपना, जिससे कि अगर मान लीजिए बाहर निकले थोड़ी देर बाद से कुछ होता है तो वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. दैट इज द थिंग. सो दैट इज मस्ट फॉर ऑल द क्रॉप. फॉर्मेलिन को लेकर के सॉइल हमने जो बेड्स बनाए हैं आप देख रहे हैं, अभी आगे और दिखा देंगे. उन बेड्स पे हम फॉर्मेलिन को डाल देते हैं और बिल्कुल एयर टाइट कंडीशन कर देते हैं पॉलिथीन से. इट इज बीइंग डन फॉर 48 आवर्स. उसमें जो फॉर्मेलिन गैस है वो माइक्रोब्स को किल करती है. And after 48 hours, you will take out the polythene. You will find that the fumes they are not affecting your eyes क्योंकि जब आप डालते हैं उस टाइम वो fumes निकल के आपकी आंखों में जलन सी करती है. So that means they are in the active stage. और जब वो काम खत्म हो जाता है 48 आवर्स के बाद से, अगर आप अंदर जाएंगे पॉलिथीन हटाएंगे तो आप देखेंगे कि वो फ्यूम्स उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है. टेक आउट, लाइट इरिगेशन दीजिए एंड देन यू कैन गो फॉर द प्लांटिंग. So that is a must for starting any type of crop in the polyhouses. Plant density again varies from different because हमें maximum utilization करना है उस एरिया का. तो you can see the crop like roses जो आप देखते हो कि बड़ा bushy सा होता है, how we can have 70,000 plants per hectare. But then here with the help of thinning, pruning, training, everything, we make the plant to grow straight because the stem length has to be straight. The moment it is bending this side, that side, that is going to produce the C, D grade that doesn't give you much price in the market. And then they will increase the competition. They will provide conditions for the insects and other things to come up. क्योंकि जहाँ आपने हल्का सा पानी डाला, आपने मिस्टिंग की या फॉगिंग की, उससे जो है कोई ना कोई इंसेक्ट उसमें आ जाते हैं और वो आपस में पत्तियों से रगड़ाने से वो और खराब करेंगे उसको. So you have to be vigilant for that thing, and that is why this much high density is being maintained under protected conditions, which is not good for the open conditions. वहाँ जब भी बात होगी तो 60 by 60 लगा लीजिए, 60 सेंटीमीटर by 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर 1 मीटर पे आप लगा दीजिए. But then if we think of that thing, probably our polyhouse will not be economical. ठीक है, तो high density planting because हमने कहा था low volume high value. वॉल्यूम कम हो, कम एरिया में हम लगाएं, ज्यादा प्लांट्स हमारे आ जाएंगे और सारे के सारे भी आप देखोगे ऐसे ही मिलेंगे आपको. नेक्स्ट प्लीज. नाउ द इंपॉर्टेंट टिप्स. जब भी कोई फ्लावर आप देखते हैं, अभी भी आप बाहर जाकर के रोजेस को देखिए तो एक ही स्टेम में आपको मल्टीपल बर्ड्स दिख जाएंगे, 2, 3, 4. और गार्डन पर्पस के लिए इट इज गुड. जितनी ज्यादा फ्लावरिंग होगी, जितना ज्यादा कार्पेटिंग दिखेगी, उतना आपको अच्छा लगेगा. बट इट हैज गॉट कॉम्पिटिशन. ठीक है, क्योंकि सेम फूड मटेरियल जा रहा है और यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे 3, 4, 5 बर्ड्स हैं, तो वो उतना डिवाइड होगा. मान लीजिए कि आपके पास एक पैकेट बिस्किट का है, आप अकेले बैठे हो तो आप खुद खाओगे, आपके लिए इट इज गुड. एक फ्रेंड आ गया, 2 फ्रेंड और आ गए, इट विल गेट शेयर्ड. ठीक है, सेम इज द थिंग हियर. जो भी फूड मटेरियल, जो भी चीजें आप दे रहे हो, इट विल शेयर्ड एंड द साइज ऑफ द फ्लावर विल बी स्मॉलर. उसकी वास्ट लाइफ कम हो जाएगी, उसकी साइज कम हो जाएगा, तो वो आपको इट्स नॉट गुड. तो वी गो फॉर डिसबडिंग. द मोमेंट वी सी मल्टीपल बर्ड्स, वी रिमूव, कीपिंग वन द सेंट्रल बर्ड इंटैक्ट. रेस्ट ऑफ द बर्ड दे आर रिमूव्ड इमीडिएटली. जितनी जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना बड़ा होते जाएगा उतना फूड तो कंज्यूम करते जा रहा है ना, वो तो आप वापस नहीं खींच पाओगे कि भाई तू वापस कर. तो इसीलिए जैसे ही आपको बर्ड दिखती है, इमीडिएटली यू टू गो फॉर डिसबडिंग. ये अगर आप कोई भी वहां पे कर रहा है, आप उससे कहोगे भाई डिसबडिंग कब की थी और कब कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, he will come to know कि यस सर को, मैडम को पता है कि यस डिसबडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रॉप. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. डेड शूट रिमूवल. कभी ऐसा इंटरमिंगलिंग हुई या आपने जैसे डिसबडिंग वगैरह की तो कुछ शूट्स ऐसी हो जाती है कई बार
कि वो सूख जाती है, खराब हो जाती है, इमीडिएटली वी हैव टू रिमूव दैट, क्योंकि वो बिना बात एक स्ट्रक्चर ही बढ़ाएंगी, एक क्राउडिंग ही करेंगी, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो जो भी डेड डिकेड टाइप की जो आपके शूट्स हैं, इमीडिएटली वी हैव टू कीप ऑन रिमूविंग। जब हम क्रॉप को, मैंने कहा कि रोजेस ग्रो फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 8 ईयर्स है, रोज हम थोड़ा थोड़ा पानी भी दे रहे हैं, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि जो सॉइल की टॉप लेयर है दैट गेट्स हार्डेंड, और उसकी वजह से एरेशन प्रॉपर नहीं होगा। जो कुछ फर्टिलाइजर आप ऊपर से दे रहे हैं, ड्रिप के थ्रू भी अगर दे रहे हैं, तो वो परकोलेट करने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए हमारे को लूजनिंग इज इम्पॉर्टेंट, कि हर 15 दिन पे, 20 दिन पे हम देखें कि अगर हार्ड हो रही है 1 महीने पे, तो हम उसकी थोड़ी सी लूजनिंग करते चले। रेक से, देयर आर रेक्स अवेलेबल, अभी मैं आपको इसमें दिखाऊं। हाँ, वो क्वालिटी एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम लोग जब गार्डन की बात करते हैं, एवरीबॉडी वांट्स कि भाई मेरा गार्डन बहुत अच्छा हो, लेकिन जो उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, प्रोबेबली यू डोंट डू टू द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी। ठीक है, सिंपल पूरे पूरे लॉन को मैं कहूं कि इस पूरे को अगर करना है, देयर आर वेज आउट, बट देन एटलीस्ट जहां पे आपने अपना प्लांट लगाना है, अगर आपने देखा होगा कि फ्रूट प्लांट या बड़े ट्री से लगाते हैं, हम कहते हैं भाई 60 बाई 60 बाई 60 का गड्ढा खोद लीजिए, 60 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा एंड गहरा, वो मिट्टी निकाल दीजिए, उस मिट्टी में FIM वगैरह ऐड करिए, और वापस में डाल के थोड़े दिन तक छोड़ने के बाद से सनलाइट भी लग जाए, आप उसको रिफिल कर दीजिए, और 1 महीने बाद फिर प्लांटिंग कराइए। अगर आपके गार्डन में जहां पे आपने रोज लगाया है, कोई इस तरह के प्लांट लगाए हैं और कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है, डीप प्लोइंग आप एक बार करा दीजिए। डीप प्लोइंग इज इंपॉर्टेंट, जो हम लोग करते ही नहीं है, कभी भी नहीं करते डीप प्लोइंग करते ही, क्योंकि ये जितने भी आपकी क्रॉप्स हैं, फ्लोरिकल्चर क्रॉप, दे आर शैलो रूटेड। ठीक है, तो हमें बहुत गहरा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर तक की भी अगर हमने प्लोइंग करा दी, तो वो हार्ड क्रस्ट जो बना है ओवर द ईयर्स, पानी देते हुए और फर्टिलाइजर देते हुए, जो हार्ड क्रस्ट बना है, वो ब्रेक हो जाता है, तो रूट्स को ग्रो करने में इजी हो जाता है, और जितना रूट अच्छा ग्रो करेगा उतना ही प्लांट ऊपर अच्छा आएगा। जैसे बिल्डिंग जब हम बनाते हैं, तो क्या होता है, एक नींव हम कहते हैं भाई, नीचे नींव जो है कितनी डाली है, 2 मंजिले की अलग होती है, 1 मंजिले की अलग होती है, 4 मंजिले की अलग होती है। वही चीज यहाँ पर भी है कि जितना डीप रूटेड, जितना टॉल प्लांट या ट्री होगा, उतनी शायद नीचे हमें स्वेट वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स इट इज समथिंग अराउंड 30-35 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अगर आप देखोगे, तो रूट सिस्टम उतना ही डेवलप करता है। तो कम से कम वो एरिया हम मैनेज कर सकते हैं। हम अगर वो करें, डेफिनेटली विल फाइंड दैट देयर इज अ चेंज। And then for most of the floriculture crop, it is the FIM which is most important. आप भले कुछ और दो चाहे मत दो, लेकिन अगर आपने FIM, सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छे से दिलवा दी, अपने जहां पे भी, चाहे पॉली हाउस हो चाहे कहीं पर भी हो, आप डलवा दीजिए, आप देखिए द रिस्पॉन्स ऑफ द क्रॉप विल ऑलवेज बी गुड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, चलो मैं आपने पूछ लिया तो मैं एक चीज और बता दूं, जहां आप लॉन बनाते हैं, लॉन्स पे आप चलते भी हो, सब कुछ करते हो, बहुत ज्यादा अगर आप करते हैं लॉन्स में, तो कभी कभार आपने पानी लगा दिया, उसके अलावा आप कुछ नहीं करते, एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि भाई उसकी परफॉर्मेंस 10 साल बाद भी वैसी ही रहेगी। अभी राधा स्वामी सत्संग आप सब लोग जानते हैं, रुद्रपुर वाला भी जो है, वहां पे हम लोग को बुलाया गया कि भाई यहाँ पे हमारे पूरा लॉन ही लॉन होता है उनका, सारे चारों तरफ। बोले सर यहाँ पे लॉन अच्छी नहीं हो रही, यहाँ अच्छी नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, वी जस्ट वांट कि जब आते हैं लोग तो एक अच्छा सा लुक मिले, ये सब चीजें हो। तो हम लोगों ने यही चीजें पूछी उनसे, आपने कभी किया ये काम? तो नहीं सर, हमने तो कभी भी नहीं किया। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देन? जहाँ पे VIP एरिया है, VVIP एरिया है, जहाँ बाबा जी आके रुकते हैं, उसमें तो आपने स्प्रिंटर्स भी लगा दिए, आपने सब कुछ लगा दिया, लेकिन बाकी एरिया में नहीं किया, तो देयर इज अ डिफरेंस। हमने कहा आप इस चीज को अमेंड करो, यू विल फाइंड दैट इन 2 months टाइम देयर इज चेंज, एंड देन दे हैव रियलाइज्ड दैट थिंग। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसलिए मैंने आपको कहा कि जैसे सॉइल स्टेरिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, सॉइल की क्वालिटी क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट। जितने भी फ्लोरिकल्चर क्रॉप पॉली हाउस में आप लगाएंगे, वी सजेस्ट यू टू गो फॉर रेज्ड बेड सिस्टम, जिससे पानी कहीं भी ना रुके, पानी रुकेगा तो वो भी खराब करेगा आपकी क्रॉप को। ठीक, या अभी आऊंगा मैं,
अगर 2 मिनट और आप दे दो, क्योंकि अब कर दूंगा तो कई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। यू आर टॉकिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम या सॉइललेस कल्चर की बात कर रहे हैं। एक क्रॉप is there are all crops can be grown under that conditions, ठीक है, but then our economics doesn't permit that thing, but there are certain crops जिसमें कि it becomes a rule कि भाई you should go for it to get a good quality out of it। कर सकते हैं, हमने उस पर भी काम कराया है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा मैनेजमेंट दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो मिट्टी आपकी है यू डोंट नो व्हाट इज द इनपुट इन दैट, उसमें क्या लेयर है। यहाँ पे जो अगर आप खोदोगे उस सॉइल का अगर आप निकालेंगे चीजें तो दैट विल डिफरेंट एनपीके लेवल, और वहीं पे यहीं 2 फीट 4 फीट के बाद ही आप निकालोगे इट विल डिफरेंट। तो दैट टाइप ऑफ वेरिएशन इज देयर। फॉर अवॉइडिंग दैट थिंग वी आर स्विचिंग फॉर सॉइललेस कल्चर जिसकी आप बात कर रहे हैं। वेरी टॉकिंग ऑफ दैट थिंग, एक क्रॉप में एक्सक्लूसिवली मैं वही सी चीज के बारे में बात करूंगा। दीज आर द क्रॉप्स, रोजेस, जरबेरा, कार्नेशन, ये सारे उस सॉइललेस कल्चर में जाते हैं। अगर आप ओवरसीज कहीं चले जाएं, इजराइल में चले जाएं, आप हॉलैंड में चले जाएं, यू विल फाइंड दैट इट इज ऑल सॉइललेस कल्चर। और इतनी चीज और बता दूं, चलो मैम ने फिर पूछ लिया कि आज के टाइम में स्पेसिफिक क्रॉप स्पेसिफिक पॉटिंग मिक्सचर्स दे आर अवेलेबल। You say that I have to go for roses, they will say that these are the rose bags, आप इसमें छेद भी किया हुआ है, केवल प्लांट लगा देना है, और आपने ड्रिप सिस्टम लगा दिया, सारा न्यूट्रिशन सब चीजें स्टैंडर्डाइज करके वो बना रखा है उन्होंने। जैसे हम लोग क्या सीमेंट की बोरियां आती हैं, उस टाइप की बोरियां आजकल आ गई जिसमें कि स्पेशलाइज रोज मिक्सचर, कार्नेशन, जरबेरा, लिलियम, एवरीथिंग टू टेल द क्रॉप। इवन वर्क इज गोइंग ऑन कि भाई किस वैरायटी पे आप करना चाहते हो, यू वांट द मिनी जरबेराज और बिगर साइज जरबेराज, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, तो उस तक पे वर्क हो रहा है। वर्ल्ड हैज गॉन लाइक एनीथिंग। हम अभी भी वही सॉइल कल्चर की ही बात करते हैं, मोस्टली हम कहते हैं मिट्टी में ऐसा करिए, मिट्टी में ऐसा करिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। बेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम 70,000 प्लांट्स करेंगे। होता क्या है, जब एक प्लांट कोई भी ग्रो करता है, यू कैन नॉट रेगुलेट कि एवरीबॉडी शुड गो स्ट्रेट अवे। अगर यूकेलिप्टस का भी ट्री आपने देखा होगा, उसमें भी कई बार ब्रांचिंग आ जाती है कि नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जब रोज का प्लांट ग्रो किया तो उसमें मल्टीपल शूट्स आपके आते हैं, इट इज राइट। जो हमारे शूट्स स्ट्रेट चल रहे हैं उनको तो हम ग्रो करने देते हैं, बाकी जो थोड़े बहुत साइड में जा रहे हैं उनको, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे रेड कलर की जो दिख रही है, ब्लैक कलर की दिख रही है, इसके साथ तार बांधी हुई होती है, ठीक है, ये दोनों तरफ। ये जितनी भी शूट साइड की ओर निकल रही है, दैट आर नॉट गोइंग टू गिव यू द ए ग्रेड और बी ग्रेड फ्लावर्स, हम इसको इसके नीचे दबा देते हैं, वो बेंडिंग हो गई। उससे क्या हुआ कि बाकी जो स्ट्रेट शूट जा रही थी उनको स्पेस अच्छा मिल गया, ग्रो करने के लिए चीजें मिल गई, लाइट अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। और एडिट एडवांटेज क्या है कि जो हमने साइड में कर दिया, अब वो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी हैम्पर होगी, लेकिन फिर भी जो लीव्स वगैरह हैं दैट विल कंट्रीब्यूट टू फोटोसिंथेसिस। तो फूड मटेरियल इस प्लांट को मिलता रहेगा एंड दैट विल बी, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ जिसकी अच्छी हो रही है, नेचुरल है, सिंक एक्टिविटी उधर ही होती है और वो मटेरियल उधर ज्यादा जाएगा, तो आपको ए ग्रेड या बी ग्रेड टाइप के स्टेम्स ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। और जो साइड वाले हैं, क्योंकि बार बार प्रून करना, ट्रिम करना, वो भी दिक्कत है, क्योंकि जहां से आप काटेंगे देयर आर चांसेस कि वहीं पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, वहां पे कोई इंसेक्ट लग जाए। तो एवरी टाइम उतने मल्टीपल स्प्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है, वो आपको डेंजरस भी है और कई जगह परमिटिव भी नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं कितना आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उसमें डाला है, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज व्हाई दिस बेंडिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन द पॉली हाउसेस। ठीक हो गया। थिनिंग, जो हमारे अनवांटेड छोटे छोटे निकल करके आ रहे हैं, हम उनको थिन आउट करते चलेंगे जिससे कि मेन स्टेम हमारी अच्छी हो जाए। डीसकरिंग, जहां पे भी जब हमारे रोज के प्लांट की हम बात करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि रोज को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अडोंट से, कटिंग से, टी बडिंग, गुड, ठीक है। कटिंग से होते हैं जो देसी गुलाब है वो किए जाते हैं, इनको भी कर सकते हैं, बट देन द परफॉर्मेंस दैट कम्स विद द आवर बडेड प्लांट्स इज ऑलवेज गुड। कमर्शियली इट इज द बडेड प्लांट्स ऑफ द रोजेस दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक हो गया। अब जहां से आपने बड लगाई, उससे जो ग्रोथ हो रही है वो तो आपकी डिजायरेबल क्वालिटी या वैरायटी या कलर है। कई बार ऐसा होता है उसके नीचे जो रूट स्टॉक वाला पोर्शन है वहां से शूट्स निकल जाते हैं, ठीक है, एंड दे ग्रो फास्टर देन दीज बडेड वंस, तो दे compete with that, so we have to go for dessuckering, हमें उसे immediately उनको हटाते चलना है।
जहां पे भी आ रहे हैं, कुछ समय के बाद से वो चूंकि थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो वहां से शूट्स नहीं भी निकलते हैं, बट देन दैट इज इंपॉर्टेंट। पिंचिंग, जहां पे हमें मल्टीपल शूट्स बनाने हैं, अगर सिंगल शूट ही रखेंगे तो एंड ऑफ द डे हमारे पास एक प्लांट से एक ही फ्लावर मिलेगा। तो हमें वो भी चाहिए कि भी मल्टीपल फ्लावर्स आए, तो वी गो फॉर टिप को हमने रिमूव कर दिया। उससे क्या होगा कि एपिकल डोमिनेंस सप्रेस हो गई, साइड से शूट्स निकल करके आए, आपने मल्टीपल शूट्स रिटेन कर लिए। ठीक है, जो फेडेड फ्लावर्स है विद इन द पॉली हाउस भी ऐसा होता है कई बार कि टेम्परेचर वेरिएशन अगर है, लाइट वेरिएशन अगर है आपके पॉली हाउस के अंदर भी, तो यू विल फाइंड दैट द क्वालिटी ऑफ फ्लावर दे आर डिफरेंट। फेडिंग हो जाएगी, ज्यादा टेम्परेचर जहां पे हुआ कलर फेड कर जाएगा। आपने देखा होगा कि आपने देखा बोले यार ये तो बड़ा हल्का सा लाल लग रहा है, ये बड़ा अच्छा सा लाल लग रहा है, मे बी वहां पे जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन थी दे आर गुड एंड फ्लावर वाज एट द फुल ब्लूम, बट यहाँ पे आपकी फेडिंग हो गई। तो वो चीजें हमें देखनी है। तो अनवांटेड फेडेड फ्लावर्स हमें रिमूव करने होंगे, क्योंकि बिना बात आपकी क्वालिटी को खराब करेंगे। एंड जो कल मैंने आपको फिर वही बात है कि जो कहा था कि जब भी हम कंसाइनमेंट भेजते हैं तो उसका इंस्पेक्शन जो होता है वो 10,000 में 1, 2, 4 का होता है। अगर कोई ऐसे फेडेड फ्लावर्स हाथ में लग गए तो आपका कंसाइनमेंट ही रिजेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेड फ्लावर जब आप देखोगे, जैसे कभी आप देखते हैं मार्केट में आप बंचेस मिलते हैं रोजेस के, पिंक कलर का है, रेड कलर का है, आप देखिए बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज, यूनिफॉर्म कलर इज देयर, कोई वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम 4 फ्लावर्स तोड़ करके लाए अपने किचन गार्डन से, यू विल फाइंड दैट विद द सेम रोजेस, सेम कलर, देयर इज वेरिएशन इन द कलर। दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, हाउ डू वी परफॉर्म दोस थिंग्स, ये मैंने इसमें आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश की थी। मल्चिंग इज आल्सो नाउ डेज इज बीइंग डन, जहां पे हो सकता है इट इज गुड, अदरवाइज तो मैंने आपको बताया कि आजकल बैग्स ही आ रहे हैं, प्लांटिंग बैग्स आ रहे हैं, तो आपकी मल्चिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट देन दैट सप्रेसेस वीड्स या बाकी चीजों के लिए, तो इट इज आल्सो गुड। नेक्स्ट प्लीज। हार्वेस्टिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फ्लावर 10 दिन नहीं रहा तो वो बेकार है। जैसे जो लूज फ्लावर्स आपके हैं, या आपको देसी गुलाब होता है, क्या देखते हो आप, आज खिला, मे बी कहीं तो शाम तक ही पंखुड़ियां गिर जाती हैं, नहीं तो अगले दिन तो गिरी गिर जाती हैं। दैट डजंट हैव एनी कॉमर्शियल वैल्यू। ठीक है, या तो हम जैसे ही निकला हमने उसके पंखुड़ियों से क्या करते हैं, या तो भगवान जी को चढ़ा दिया, या फिर हमने उससे एसेंशियल ऑयल निकाल दिया, क्योंकि खुशबू उसमें अच्छी होती है। जितने भी ये कट रोजेज हैं, सूंघ के देखोगे आप तो शायद उसमें कोई खुशबू ना मिले। ठीक है, लेकिन बिकॉज अभी देखिए यहाँ से देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ दीज फ्लावर। देयर आर सम व्हिच हैव गॉट सम सेंट, बट देन मोस्टली दे आर नॉट। नाउ टाइट बड स्टेज, जब हम लोग कहते हैं जैसे सेकंड भी नहीं, थर्ड फोर्थ जो इसमें फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, दे आर द परफेक्ट स्टेज व्हेन वी शुड हार्वेस्ट द फ्लावर्स। जो थोड़ा सा थर्ड वाला स्टेज है डिस्टेंट मार्केट के लिए, दैट इज गुड, और जो फोर्थ वाला है लोकल या आसपास के मार्केट के लिए, दैट इज गुड, क्योंकि एक्सपेंडिंग शुरू हो गई है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा चीजें होंगी, या आपने जहां ग्रो किया था टेम्परेचर ज्यादा है तो ये फास्ट खिलने लगेगा आपका, तो उतनी जल्दी उसमें खराब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड या फर्स्ट स्टेज में आपने हार्वेस्ट कर लिया तो देयर आर चांसेस इट विल नॉट ब्लूम एट ऑल। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि भाई ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा उसमें आ गए, बोले ठीक है बिल्कुल अभी बड़ी स्टेज में हार्वेस्ट कर लो, बढ़िया रहेगा, बहुत दिन तक चले जाएगा, बिल्कुल ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो टाइट बड स्टेज या लूज बड स्टेज हम लोग कहते हैं, दैट इज गुड फॉर रोजेस टू बी हार्वेस्टेड। द लॉन्गर द स्टेम यू कैन गेट, दैट इज गुड फॉर ऑल फ्लावर्स। अगेन व्हेन यू गो फॉर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, इट इज द स्टेम लेंथ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जितनी लंबी आपको स्टेम लेंथ मिल जाए उतना अच्छा है। एंड देन यू ग्रेड कि भाई दिस इज 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70, रोजेस में 80, 90 सेंटीमीटर तक आप स्टेम लेंथ मार्केट में देख सकते हैं। आपके यहाँ जो होती है मोस्टली इट इज 40, 50, मैक्सिमम कोई गई तो 60 चली जाएगी, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी फुल्ली कंट्रोल्ड नहीं है। प्लीज स्विचिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्रॉप, कार्नेशन। अगेन इट इज अ वेरी गुड क्रॉप। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो दिस कम्स अंडर सेकंड और थर्ड रैंकिंग इसकी है। रोजेस दे आर ऑलवेज द फर्स्ट, उसके बाद से अगर हम देखें तो इट इज कार्नेशन। कार्नेशन में वी हैव गॉट 2 डिफरेंट ग्रुप्स। Anybody who has got an idea? What are the classes of carnations? No, I don't expect also. There is one is standard carnation and second is spray carnation, and that is true for chrysanthemum as well. There is a standard chrysanthemums and there is spray chrysanthemums. Standard क्या है, जैसे इसमें आप देख रहे हो एक स्टेम में
देयर विल बी सिंगल फ्लावर, बड़े साइज का फ्लावर होगा, 60 70 80 सेंटीमीटर्स की स्टेम लेंथ होगी, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड वन रिक्वायर्ड बाय मेनी ऑफ द कंट्रीज। कुछ लोगों को मल्टीपल शूट्स चाहिए, जैसे कि एक बुके अपने आप में हो, स्प्रे फॉर्म हो, या ब्लूम हम कह देते हैं कि झाड़ू की तरह है अपना, मल्टीपल निकल रहे हो, सब में एक एक बढ़ा रखी है, तो वो एक अपने आप में बुके हो जाते, नीचे से आपने काटा तो एक ही काफी है, उसमें 6 7 8 फ्लावर्स तक आपको मिल जाएंगे। दोज आर दी स्प्रे कार्नेशंस। यूरोपियन मार्केट की बात करें, जापानीज मार्केट की बात करें, तो दे प्रेफर स्प्रे टाइप कार्नेशंस। अमेरिकन मार्केट की बात करें तो दे प्रेफर स्टैंडर्ड कार्नेशन। इंडियन कंडीशंस की बात करें, हम भी स्टैंडर्ड कार्नेशन प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द चॉइस वी हैव टू ग्रो। What is my target? I have to check that thing. Accordingly, I have to select whether I have to go for standard carnation or I have to go for spray carnation. दोनों में बाकी culture practices almost will be the same. The difference will be of spacing. जहाँ हमें स्प्रे करना है, दैट मीन मल्टीपल शूट्स हमें रिटेन करने हैं, तो वहाँ स्पेस हम थोड़ा सा ज्यादा वहाँ पे रखेंगे पर प्लांट के लिए, और जहाँ केवल स्टैंडर्ड ही हमें करना है कि एक ही शूट निकालनी है, तो बिल्कुल आप पास कर दीजिए। अभी आप देखेंगे, नेक्स्ट कर दीजिए, इसमें वैरायटी इज अवेलेबल, बाई कलर दे आर ऑल्सो अवेलेबल। देखिए इसमें जो बाहर के आउटर लेयर्स हैं उसमें डिफरेंट कलर की होंगी, एंड देन ऑल कलर्स यू थिंक ऑफ ए कलर, इट इज अवेलेबल राइट फ्रॉम व्हाइट टू ऑलमोस्ट ब्लैक टाइप। नेक्स्ट प्लीज। नाउ स्टैंडर्ड एंड स्प्रे कार्नेशन की जो मैं आपको बात कर रहा था, वो ये चीज आपकी हो गई, स्प्रे कार्नेशन, स्टैंडर्ड कार्नेशन। नेक्स्ट प्लीज। नाउ जो सॉइल सोलाइजेशन की बात हम लोग कर रहे थे, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, एफआईएम डालने की, इस तरह से रेस बेड आप बना देते हैं, और ये जो स्ट्रिप टाइप की दिख रही है, दीज आर दी ड्रिप लाइंस फॉर द इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम। कार्नेशंस दे आर वेरी डेलिकेट। जब फ्लावरिंग आती है तो स्टेम इतना डेलिकेट होता है कि उस फ्लावर के वेट को भी सस्टेन नहीं कर पाता है, इतना टेंडर होता है, तो इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है। तो जो नीचे आपको ये दिख रहा है, नेट टाइप का दिख रहा है, इस टाइप के नेट्स हम मल्टीपल लेयर्स पे लगाते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगा कि जब हमने प्लांटिंग करनी शुरू की तो इनके बीच बीच में हमने लगा दी प्लांटिंग, और ये नेट जो है नायलॉन का होता है, ट्रेलिसिंग नेट कहलाता है। ये मार्केट में अवेलेबल है हर साइजेस में, कितना आपको स्क्वायर का साइज चाहिए उसके हिसाब से, क्योंकि स्पेसिंग आपकी वेरिएबल होगी, आप वो करते हैं। एंड देन जैसे दिस इज द ग्राउंड लेयर, आपने एक यहाँ पे लगा दिया, एक उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन कितने हाइट तक आपकी क्रॉप जाएगी, क्योंकि यू नो दी पोटेंशियल ऑफ द प्लांट कि 70 सेंटीमीटर तक जाएगा या 60 तक ही जाएगा, उसके हिसाब से मल्टीपल लेयर्स आप लगाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। दीज आर द डिफरेंट स्पेसिंग। अगर आप नीचे देखें तो ये आप 7.5 to 7.5 फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, मल्टीपल लेयर्स आप इसको लेते जाएंगे, और जैसे जैसे प्लांट आपका ग्रो करेगा वो उस पर सपोर्ट लेकर के स्ट्रेट चलता जाएगा। तो दैट इज हाउ वी प्रोवाइड दिस सपोर्ट। नेक्स्ट प्लीज। यू कैन सी हियर, उसके लिए स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ते हैं। आपने लोहे के चाहे बैम्बू के आपने बना दिए, और साइड में पूरी ऑल अलोंग दी रो, और ये आपका ये बेड आपने साइड में भी सपोर्ट दिया नेट बांध करके या तार बांध करके, उसके ऊपर ये नेट्स को हम चलते चलते हैं। देखिए आप धीरे, यहाँ अगर आप देखेंगे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर आपको दिखेगी। नेक्स्ट में अगर आप दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। नाउ यू कैन सी, यहाँ जहाँ बड्स आने लगी है यहाँ पे भी नेट है, उसके नीचे भी नेट होगा मल्टीपल जगह पे, जिससे कि आप इसको स्ट्रेट कर दें। और जब आपको हार्वेस्ट करना है, आपने नीचे से हार्वेस्ट किया और ऊपर से स्टेम को पकड़ के खींच लिया, तो सीधे सीधे निकल जाएगा, क्योंकि कोई ब्रांचिंग है ही नहीं उसमें। So that is how this net system supports the plant to remain straight, या जो stem आपकी straight रहे, that is the ultimate quality. ठीक है, next please. नेट रीयूजेबल Multiple time, जब तक आप उसे तोड़ ना दो, 10 साल तक आप उसको चला सकते हैं, क्योंकि only it has got function to support the plant. लेकिन वो ये है कि आपको बार बार जब नई प्लांटिंग आप करोगे 1 साल के बाद से, क्योंकि कार्नेशंस नॉर्मली दे आर बीइंग रिपीटेड एवरी ईयर, तो उसको आपने नीचे कर दिया, या आपने उसको जो है ना खोल करके रख लिया, नेक्स्ट ईयर फिर आपने उसके हिसाब से लगाना शुरू कर दिया, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ हो रही है आप उसको बढ़ाते चलते हैं। तो दैट इज हाउ यू कैन गो फॉर दीज आर रीयूजेबल। नायलॉन के हैं, प्लास्टिक के हैं, तो आप हर समय यूज करते हैं, ना पानी से खराब होना है ना कुछ है, तो दीज आर ट्रिकिंग टाइप ऑफ थिंग्स। जो ऑपरेशन इसमें करने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कार्नेशंस में भी मल्टीपल बड्स बहुत आती हैं, आपको पिंचिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
पिंचिंग इज अगेन जो मैंने भी बात की थी कि शूट को रिमूव करना। नेक्स्ट कर दीजिए, आप फिगर्स देखोगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कर दीजिए। अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिंचिंग। वन इज वी से दैट सिंगल पिंच, मींस कि आपका ये स्टेम था, ये जब इस हाइट पर आया, छोटी सी हाइट पे आया, हमने यहां से एक बार कट कर दिया, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस इसकी खत्म हो गई। क्या होगा, इसके नीचे से 2 शूट्स आप रिटेन कर लीजिए, 4 शूट्स आप रिटेन कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन क्या स्पेसिंग आपने रखी है और कितना आप प्रोडक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जैसे आपने यहां लिया, जो बिफोर पिंचिंग इस तरह है, आपका सीधे ग्रो कर रहा है, आपने जहां 4 से 5 नोट्स आनी शुरू हो गई, उसके ऊपर से देखो कट लगा हुआ है, कट कर दिया, तो क्या होगा, एपिकल डोमिनेंस हुई, साइड से आपके शूट्स आ गई, आपने 2 शूट से 4 शूट्स रिटेन कर दी, दे विल ग्रो एंड दे विल गिव यू फ्रॉम सिंगल प्लांट 4 फ्लावर्स। ठीक हो जाएगा ना, 4 अगर है तो 4 दे देंगे, 2 है तो 2 दे देंगे, ठीक हो गया। तो दिस इज व्हाट इज सिंगल पिंच। नेक्स्ट में चले, सेकेंड इज पिंच एंड ए हाफ। एक पिंचिंग हमने की, उससे 4 शूट्स आ गई मान लीजिए, अब उस 4 शूट्स में 50% हाफ की बात हुई है, तो 2 शूट, 4 में 2 शूट्स को हम पिंच कर देंगे, 2 को ऐसा छोड़ देंगे। तो जिसको हम ऐसा छोड़ देंगे उसकी ग्रोथ पहले शुरू हो जाएगी, वो फ्लावरिंग पहले दे देगा, और जिसको हमने पिंच कर दिया, नेचुरल कुछ दिनों के बाद से उससे शूट्स निकलेंगी, तो वो आपको थोड़ी सी लेट देगा। तो आपकी स्टैगर्ड प्रोडक्शन आपका हो जाएगा। मार्केट में एक के बाद एक जो भेजने वाली बात होती है, दैट कैन बी अचीव्ड वेरी वेल थ्रू दिस। सिंगल पिंच किया, एक बार कट किया, 2 शूट्स आए, दोनों शूट्स इकट्ठे ग्रो करेंगे और एक ही टाइम में दोनों को हार्वेस्ट भी करना होगा। पिंच एंड हाफ में हमारे 2 को हमने ग्रो करने दिया, मान लीजिए कि आज हमने पिंच किया, 30 डेज के बाद से हार्वेस्टिंग उसकी हो गई, और उसी 2 में जिसको हमने पिंच किया बाद में, या उसी टाइम हमने पिंच किया, कुछ दिनों के बाद उसमें शूट्स आएंगे, तो हफ्ते या 10 दिन डिले हो जाएगा। तो यू आर गोइंग टू गेट फर्स्ट प्रोडक्शन एट से अगस्त 5th and the second production at August 10th or 15th. So that is how staggered planting is done. And then is double pinching, जो कि बहुत कम की जाती है, लेकिन अगर सीजन अच्छा नहीं है जी, मतलब कि प्रोडक्शन की डिमांड ज्यादा नहीं है, उस वक्त आप डबल पिंच भी कर सकते हो कि आपने डिले कर दी फ्लावरिंग, ठीक है। जो 2 आए, आपने 2 को रिटेन किया, उनमें भी आपने दोबारा फिर पिंच कर दिया, तो उससे क्या होगा, और लेट हो जाएगा, लेकिन उससे मल्टीपल शूट्स निकल आएंगी, फिर वो क्वालिटी आपकी उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी, आपके बी और सी ग्रेड ज्यादा आपको मिलेंगे। तो इसलिए ये डबल पिंच हम लोग कम प्रैक्टिस करते हैं, बट देन अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस इस तरह के हैं तो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। क्या हो गया, तो ये पिंचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कार्नेशंस। सेकंड इज डिसबडिंग, जैसे हमने अभी रोजेस में बात की थी, जहां पे स्टैंडर्ड कार्नेशन है, एक ही बड हमें चाहिए, वहां पे भी आप देखेंगे इस साइड से बड्स आ रही है, वी हैव टू इमीडिएटली रिमूव दोस बड्स, जिससे कि एक स्टेम पे एक ही रहे। इवन स्प्रे वाले में भी आप देखोगे जो मल्टीपल शूट्स है, उसमें मल्टीपल बड्स आ रही हैं, तो हमें वहां पे भी डिसबडिंग करते रहना होगा। या प्लीज कहीं पे, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये डिसबडिंग की जो हम लोग बात कर रहे थे, जहां आपने देखा कि सेकेंड या थर्ड बर्ड्स आ रही हैं, हम इमीडिएटली उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट प्लीज। ओह माय गॉड, डी शूटिंग, कई बार इसमें जो डिफरेंट नोट्स होते हैं वहां से कई बार शूट्स निकल आते हैं, तो हमें उसको रिमूव करना है, दैट इज शूटिंग। कैलेक्स बेंडिंग, बैंडिंग, दिस इज नॉट बेंडिंग, दिस इज बैंडिंग, बेंड होना, मुड़ जाना। बैंडिंग मींस कि इसके ऊपर हम बैंड लगा रहे हैं, रबर बैंड लगा रहे हैं। इट्स ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन कार्नेशंस, कि कई बार क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर वेरी करती हैं या इवन न्यूट्रिशनल कंडीशंस भी अच्छी नहीं होती, तो ये कैलेक्स जो आपका है, जैसे देखो रेड कलर का फ्लावर इसके साथ निकल के आ रहा है, ये स्प्लिट कर जाता है, और जहां वो स्प्लिट हुआ, नीचे से ही 2 भागों में हो गया, तो फ्लावर की क्वालिटी खत्म हो गई, और दैट इज ए बिग लॉस टू द फार्मर, क्योंकि एक स्टेम पे एक ही हम ले रहे थे, उसमें भी वो खराब हो गया। तो व्हाट वी डू, एक प्रोसेस ये बना, नेक्स्ट स्लाइड दीजिए, दिखाइएगा कि आपने इसके ऊपर ये रबर बैंड लगा दिया, जो जो फ्लावर्स आपके स्प्लिट हो रहे थे उसके ऊपर आप इस तरह से एक फिजिकल बैंड लगा देते हैं। वो क्या करता है, ओवर द पीरियड वो उसको
चिपकाए रखता है। ठीक है, कुछ तो रिवाइव कर जाते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो अगर इसको आपने ठीक से फ्लावर आपका खिल जाएगा और आपको दिखेगा नहीं कि उसमें हमने बैंड लगा रखा है। तो दैट इज हाउ वी गो फॉर बैंडिंग इन दोज स्प्लिट फ्लावर्स। ठीक है, तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लीज। क्रिसेंथेमम अगेन सेम, मैंने जो कहा था स्टैंडर्ड एंड आपको जो है सिम स्प्रे या सिम का क्रिसेंथेमम से लाइट का यहाँ पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट आइए, कंडीशन है क्योंकि टाइम भी होते जा रहा है। मल्टीपल इसमें भी जो है आपके वेरी हाई डेंसली यू कैन प्लांट। ठीक है, इसीलिए हम कई बार इसको स्टेकिंग भी करते हैं। वैसे क्रिसेंथेमम्स नॉर्मली दे सस्टेन द वेट ऑफ द फ्लावर्स, बट देन एट टाइम्स आप देखते होंगे कि जब फ्लावरिंग खूब हो जाती है तो क्रिसेंथेमम आपने गुलदाउदी घर पे भी लगाई है तो कई बार गिर जाती है। उसको सपोर्ट करने के लिए वही ट्रस्लिंग नेट टाइप के आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आर्टिफिशियल लाइट, क्योंकि ये जब वेजिटेटिव ग्रोथ है उस टाइम हमारे को लॉन्ग डे कंडीशंस चाहिए और जब फ्लावरिंग आनी है तो शॉर्ट डे कंडीशन चाहिए। हम इसे अगर ओपन में आप देखेंगे, अगर घरों में आप लगाएंगे तो आप देखोगे जून जुलाई अगस्त तक में आप प्लांटिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस वक्त आप देखो तो लाइट बड़ी अच्छी होती है हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन। जब फ्लावरिंग आती है क्रिसेंथेमम में तो आप देखोगे तब तक दिसंबर आ जाता है, जबकि शॉर्ट डे कंडीशंस हो जाती है। तो वही चीजें हमें आर्टिफिशियली यहाँ पे अगर मैनिपुलेट कर दें तो हमारी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग डे कंडीशंस हमें करनी है तो हम आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हैं। एलईडी लाइट्स आजकल आ रही हैं मल्टीपल टाइप की, रेड ब्लू व्हाइट कलर्स की। दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू दोज एलईडी लाइट्स, जिससे कि आपका लॉन्ग डे कंडीशंस हो जाए, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए। एंड द मोमेंट इट कम्स टू फ्लावरिंग हमने डार्क कंडीशंस क्रिएट की फॉर 14 आवर्स, जिससे कि फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो जाए। बिल्कुल डार्क आपका जो है पॉलिथीन कह लीजिए या आजकल डार्क कलर के शेड नेट्स आते हैं वो लगा दीजिए, लाइट सारी ऑफ कर दीजिए आप, तो उससे डार्क कंडीशंस होंगी, उससे आपकी फ्लावरिंग अच्छी हो जाएगी। तो जस्ट टू बूस्ट अप द फ्लावरिंग यू कैन डू, एंड दिस कैन बी डन राउंड द ईयर, क्योंकि पॉली हाउस में है, जब आप चाहिए लॉन्ग डे कंडीशंस कर दीजिए, जब आप चाहिए शॉर्ट डे कंडीशंस कर दीजिए। दैट इज हाउ वी रेगुलेट and we keep on getting multiple production in chrysanthemums. Next please. These are the operations जो कि डिसबडिंग वगैरह जो हमने पहले बात की थी, इसमें भी मल्टीपल बड्स आ जाती हैं, हम उसको निकालेंगे, डी शूटिंग करेंगे, पिंचिंग करेंगे जिससे कि मल्टीपल शूट्स आ जाएं, और अगर बहुत ज्यादा शूट्स आ गई तो थिनिंग भी करनी जरूरी है, क्योंकि इतना इंटरमिंगल भी ना हो जाए कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ क्वालिटी फ्लावर। ठीक है, हार्वेस्टिंग जैसे स्प्रे कार्नेशन उसमें मैंने नहीं बताया, सॉरी, दोनों में वही है, कार्नेशन में भी इसमें भी। स्प्रे वाले में जो मिडिल वाला फ्लावर है, क्योंकि मल्टीपल शूट आएंगे, मल्टीपल फ्लावर्स होंगे, तो बीच वाला खिल जाए और जो बड्स हमारी हैं वो आपकी इंटैक्ट हो, अच्छी ग्रोथ उसकी हो, दैट इज द राइट स्टेज टू हार्वेस्ट। और जो आपके स्टैंडर्ड वाले हैं उसमें हाफ ओपन टाइप के जो फ्लावर्स हैं उनको कर ले। और कार्नेशंस में तो हम उसको कहते हैं पेंट स्टेज। जैसे हमारे पास पेंटिंग ब्रश होता है, आप देखते हो कि वो थोड़ा सा चौड़ा सा ऊपर की ओर से होता है, वो जब हम देखते हैं कि बड्स हमारी थोड़ी सी खिल गई हैं, कलर भी शो हो गया है, तो दैट इज द राइट स्टेज टू गो फॉर, एंड वी कॉल इट एज पेंट ब्रश स्टेज। स्टैंडर्ड में स्प्रे वाले में क्या होगा कि एक सेंटर वाला फ्लावर तो खुल ही गया, बाकी सबकी बड्स हमारी इंटैक्ट हो गई है, हल्की खिलनी शुरू हुई है, हम उसको तब हार्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। Gerberas, again, they are very good flowers for the cut flower purpose under protected conditions, and multiple. Once you are going to plant, carnation में भी और chrysanthemum में भी आप एक बार crop लगाओगे, every year you have to go for. But Gerbera is one that can last for 3 to 4 years. ठीक है, और multiple आपको round the year flowering मिलती रहती है। अब इसमें देखिए कहानी क्या है, next please. Multiple varieties, multiple colors they are available. कुछ ऐसे होते हैं किसका आप देखिए सेंटर जो है इट इज ब्लैक, तो एट टाइम्स दे आर प्रिफर्ड क्योंकि अपने आप में एक कंट्रास्ट दे देते हैं। और कुछ वैरायटीज ऐसी होंगी जिसमें सेंटर भी उसी कलर का होगा जिस कलर के बाकी पेटल्स हैं। तो चॉइस इज योर्स, बाई कलर्स दे आर अवेलेबल, बट देन मोस्टली मार्केट प्रिफर्स दिस ब्लैक सेंटर्ड वैरायटीज। तो व्हेनेवर यू हैव टू चूज you can go for multiple colors, but then those which are having a black center, right? Tissue culture plant, they are commercially used everywhere for gerberas. You can go for, but then later on maybe you are going to change the crop with tissue culture plants, or maybe with the division of the sucker that is already available with you, जिसमें कि फ्लावरिंग अब कम होने लगी 4 साल के बाद से, आप उसको रीयूज कर सकते हैं।
इसमें भी रेस बेड लगा के आप इसको करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। जो प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट हैं, अगेन फिर बात करें डिसबर्डिंग की, यहाँ पे भी आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बर्ड्स कई सारी आ जाएंगी, एक स्टेम पे एक ही बर्ड मिलेगी इसमें, नीचे से ही देयर इज अनब्रांच्ड, इसमें जब जरबर आप देखोगे तो नीचे से ही पत्तियां आ रही हैं और नीचे से ही जो सकर वाला पोर्शन है, जमीन के अंदर का पोर्शन है, वहीं से सीधे फ्लावर बर्ड भी निकल रही है। लेकिन जब मल्टीपल बर्ड्स आ जाती हैं तो कई बार ये होगा कॉम्पिटिशन ज्यादा हो गया, एक ही प्लांट से 10 बर्ड्स आ गई, तो वो आपकी मेन बर्ड की या मेन फ्लावर्स जो आपके आ रहे हैं क्वालिटी को हैम्पर करेगा, तो हम कई बार उसकी डिसबर्डिंग कर देते हैं। या जब हम देखते हैं सीजन अच्छा नहीं है मार्केटिंग के हिसाब से, वो टाइम अच्छा नहीं है जबकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो हम पहले ही जैसे बढ़ाया हमने रिमूव करना शुरू कर दिया, जिससे कि जब सीजन आ रहा है उस वक्त हमने अलाउ किया, देयर विल बी गुड फूड मटेरियल अवेलेबल विद द प्लांट, और उससे जो है आपकी क्रॉपिंग और फ्लावर की क्वालिटी अच्छी मिलती रहेगी। डी लीफिंग, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं जैसे कि आपने देखा हो मूली के पत्ते होते हैं, उस तरीके के पत्ते इसमें भी होंगे, और मल्टीपल जब लीव्स आ जाती हैं तो आपस में इंटरमिंगल करने लगती है, इसलिए जो ओल्डर लीव्स हैं उनको हमें हटाते जाना चाहिए जिससे कि सेंटेशन प्रॉपर रहे। थर्ड थिंग अगेन जो रेकिंग वाली हम लोग बात कर रहे थे, सॉइल को आपको लूज करते रहना है। जस्ट 2 मिनट्स मोर। नेक्स्ट प्लीज। ठीक हो गया। हार्वेस्टिंग की बात चलो अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि लीलियम इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। ठीक है, ये वो क्रॉप है दैट इज रिकमेंडेड टू ग्रो अंडर सॉइल लेस कल्चर। कहीं पे भी आप करिए, अगर आप सॉइल लेस में कर रहे हैं जिसमें बेसिकली वी गो फॉर कोकोपीट, जो कोकोनट के ट्रीज हैं उसके हस्क वगैरह चीज से पाउडर टाइप का बना लेते हैं, दैट इज इनर्ट, दैट डजंट हैव एनीथिंग इन इटसेल्फ। जैसे मिट्टी हमारी होती है उसमें एनपीके और टाइप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट सब कुछ है, और दैट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हमें ये नहीं पता होता है कि जिस मिट्टी में हम ग्रो कर रहे हैं या यहाँ से वहां तक की मिट्टी में कितना वेरिएशन है, तो कितना हम इनपुट दें जिससे कि क्रॉप हमारी अच्छी हो। मे बी सेम इनपुट इज गुड फॉर वन प्लांट एंड मे नॉट बी गुड फॉर द अदर वन, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सॉइल रिच थी, तो वो कई बार टॉक्सिक लेवल पे चले जाता है। इसीलिए पर्टिकुलरली इस क्रॉप में, क्योंकि दिस इज बीइंग रिगार्डेड एज एक कॉमर्शियल क्रॉप और इंडस्ट्रियल क्रॉप, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट की चाहिए। जो बल्ब्स हैं एवरी ईयर दे आर बीइंग इंपोर्टेड, और कल मैंने आपको बताया था कि कॉस्टिंग इज समथिंग अराउंड 12 रुपीज टू 18 रुपीज टू 28 रुपीज तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन दी वैरायटी और कल्टीवार हम कौन सा यूज कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखो एशियाटिक, ओरिएंटल, लॉन्गीफ्लोरम एंड LA इज लॉन्गीफ्लोरम, सॉरी ये स्पेलिंग में गलत हो गई है, क्रॉस्ड विद एशियाटिक, जिसमें दोनों के अच्छे कैरेक्टर्स मिला करके वैरायटी डेवलप की गई है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ अपवर्ड ग्रो करते हैं, कुछ साइडवर्ड ग्रो करते हैं, कुछ नीचे की ओर बेंड करते हैं, कुछ में कलर्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा है, कुछ में कलर्स लिमिटेड हैं, कुछ सेंटेड हैं, कुछ नहीं है, अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से उसमें चीजें हैं। तो यू हैव टू लुक फॉर कि कौन से कंट्री, कौन से रीजन को हमें टारगेट करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ग्रुप हम चूज करेंगे। बहुत बढ़िया क्रॉप, इंडस्ट्रियल क्रॉप भी कहलाती है, क्योंकि बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो सॉइललेस कल्चर आप कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा, प्लस जो बल्ब आपको इंपोर्ट करना है हर साल, क्योंकि एक बार बल्ब जो यूज हो जाता है फॉर कॉमर्शियल पर्पज इट इज नॉट बीइंग रिपीटेड। अपने घर में आप लगा के छोड़ दीजिए, अगले साल फिर उसमें से फ्लावर आ जाएगा, साइज जरूर छोटा हो जाएगा फ्लावर का भी और स्टेम का भी, लेकिन इट विल कम, क्योंकि वेजिटेटिव चीज है वो देगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। इसमें तो यही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें देखिए आप मल्टीपल साइज के हिसाब से बल्ब का साइज क्या है उसके हिसाब से आपको स्पेसिंग आपको लेनी है, और उसी हिसाब से प्रोपोर्शन में आपको फ्लावर का साइज, स्टेम लेंथ भी मिलेगी। छोटा बल्ब है तो नेचुरल है कि उसकी स्टेम लेंथ छोटी होगी एंड देन फ्लावर का साइज भी छोटा होगा। लाइकवाइज नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज नॉट डिफिकल्ट, बट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि सॉइललेस कल्चर की बात कर रहे हैं, वो ऐसी चीज है कोकोपीट जहां पानी डालोगे तो बिल्कुल नीचे तक चले जाएगा और पानी ज्यादा दूर भी नहीं जाएगा, वहीं का वहीं इकट्ठा हो जाता है। अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ, अगर वहीं पे बल्ब पर पानी लग गया तो बल्ब को सड़ा देगा। दे आर सो क्लोजली प्लांटेड कि पूरी पूरी बेड आपकी र्यून हो जाएगी ओवरनाइट या 2-3 दिन के अंदर अंदर, इतना ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इरिगेशन, विद द फर्टिगेशन, क्योंकि जो चीज आप अप्लाई कर रहे हो केवल वही उस प्लांट को मिल रहा है, अदरवाइज नथिंग इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द
soilless system. ठीक हो गया. हार्वेस्टिंग जब आपकी अगेन जब लोकल मार्केट की हम बात करेंगे तो एक या दो बर्ड्स आपकी कलर्स दिख रही है, हल्का सा खुलना शुरू हो गया, दैट इज द राइट स्टेज. फॉर डिजिटल मार्केट एक या दो फ्लोरेट जो कलर शो कर रहे हैं, हल्का सा खिलना शुरू हो गया, दैट इज गुड. वहां पे टाइट बर्ड थी, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया. इंडिविजुअल फ्लावर्स को रैप किया जाता है. इंडिविजुअल स्टेम अगर मल्टीपल है, सब में आप देखेंगे 3, 4, 5 तक बर्ड्स मिलेंगी एक एक स्टेम में. ठीक है. तो उस पूरे स्टेम को एक साथ एक प्लास्टिक की स्लीव में हम पैक करते हैं, जिससे कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन में वो एक दूसरे रगड़ खा के खराब ना हो. क्योंकि द कॉस्ट ऑफ दिस फ्लावर इज समथिंग अराउंड 50, 60, 70 रुपीज अ सिंगल स्टेम. अगर आप 20 रुपीज का बल्ब खरीद रहे हैं, 10 रुपए और लगा लीजिए उसके ग्रो करने के लिए, 2.5 महीने में क्रॉप आपकी आएगी. तो जब तक 50, 60, 100 रुपए तक आप नहीं बेचो, आपको शायद वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा. ठीक है. इसीलिए अगर लोकल मार्केट में आप देखोगे तो कभी भी आपको लीलियम, एंथूरियम या ऑर्किड्स लोकल मार्केट में नहीं मिलेंगे. थोड़ा सा जो हाई एंड होम्स होते हैं उनमें ज्यादा यूज करते हैं. नेचुरल है भाई, मेरे पास पैसा है, आई कैन डू एनीथिंग. भाई ये बताइए कि शायद मारुति हर कोई खरीद लेगा, मोटरसाइकिल हर कोई ले लेगा, लेकिन अगर ऑडी लेनी है या कोई और लेनी है तो नेचुरल है कि यू हैव टू बी हैव मोर मनी. सेम इज ट्रू हियर. अगर आपको पैसा है, आप लोगे वो ऑर्किड ले आओ. शादियों में लोग कहते हैं नहीं केवल ऑर्किड का ही डेकोरेशन होना है, तो फॉर सिंगल ऑर्किड यू हैव टू पे 100 रुपीज अ सिंगल स्टेम. तो लाखों लाखों रुपए आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे, आपके पास पैसा नहीं, आपने कहा ठीक है ऐसा करो, गेंदे की माला लगा दो, दैट टू इज गुड. जरबेराज लगा दीजिए, कार्नेशन लगा दीजिए, थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जाएगा, बट देन विल नॉट कॉस्ट सेम एज दैट ऑफ लीलियम और से ऑर्किड्स. तो वो चीज है, कितना हमारे पास है हम इन्वेस्ट उस हिसाब से करते हैं कि नहीं. तो दैट इज नॉट अ कॉमन मैन प्रॉब्लम, बट देन इंडस्ट्री के लिए जब आपको इन्वेस्ट करना है, हमारा टारगेट क्या है, वो सब चीज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट प्लीज, मेरे लास्ट स्लाइड होनी चाहिए. यस. ओवरऑल फॉर अक्रॉस द क्रॉप्स कट फ्लावर्स सॉइल स्टरलाइजेशन मस्ट. चॉइस ऑफ वैरायटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मार्केट को टारगेट करना है. मेरे को क्या पसंद है शायद वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या पसंद है, क्योंकि खरीदने वाले आप हो, तो आपके हिसाब से चॉइस ऑफ वैरायटीज, मल्टीपल वैरायटीज एवरी टाइम यू शुड गो फॉर. ठीक है. स्टैंडर्ड कल्चर प्रैक्टिसेस जो मिलते हैं, आप जिससे प्लांटिंग मटेरियल लोगे वो पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की एक बुक दे देगा आपको, या एक पेज का राइटअप दे देगा, सर ऐसे ऐसे फॉलो करिए, कोई दिक्कत आती है आप मेरे को फोन कर दीजिए. दे गिव यू ऑल रियल टाइम एडवाइसमेंट. ठीक है. प्रिफर्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्लाइमेटिक कंडीशन मेंटेन करें, तभी ऑप्टिमम क्वालिटी आपको मिलेगी. जेनेटिक पोटेंशियल इज वन, बट देन क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेटिक से जेनेटिक पोटेंशियल. ठीक है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इरिगेशन, फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा चाहिए, जहां ज्यादा दे दिया वो सड़ा देगा, क्योंकि सारी शैलो रूटेड है, एकदम से खराब कर देंगे. इसलिए रेज बेड की हम लोग बात करते हैं. हार्वेस्टिंग एट द राइट स्टेज, राइट टाइम, एंड नॉर्मली यू शुड गो इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. पॉली हाउस के अंदर भी दिन में आप जाओ तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है. जितना कूल टाइम में आप करेंगे और कितना कूल चैम्बर में, कूल सिस्टम में आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, उतनी क्वालिटी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ आपकी अच्छी होगी. There are specific post-harvest handling treatments, packaging material, everything is available, logistics, जो इस पूरे ट्रेड को सपोर्ट करता है. अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं, डब्बे अवेलेबल है, उस साइज के अवेलेबल हैं. आपको लेने रेफ्रिजरेटर वैन्स आपको चाहिए, आपको जो स्टोर करना है वहां के लिए आपको चाहिए. वो चेन अगर ब्रेक हुई तो आपकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ इमीडिएटली खराब हो जाएगी. So we have to be careful of that. Thank you so much. If you got any queries, I'm ready to answer that thing. I'm sorry I've taken more than the time that is required, but then maybe what I gathered from your faces, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट काफी लोगों को आ रहा था, कुछ लोगों को नहीं भी आता है. जो अपन कोल्ड स्टोरेज करते हैं उसके बाद में जब अपन उनको बाहर निकालते हैं वो वही बस बड़ा इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू मेंटेन दैट टेम्परेचर. वंस इट इज एट 4 डिग्री, जहां हमने बाहर निकाला और जल्दी वो इमीडिएटली उसमें क्या होगा, आपको मॉइस्चर उसमें आ जाएगा और रियून कर देगा. तो फिर हमें वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है जहां तक डेस्टिनेशन है वहां तक. लेकिन सर अगर जैसे अपन कंज्यूमर को भी सेल करेंगे, अगर जैसे आपका मतलब पूरा आपके पास आ गया वो कोल्ड स्टोरेज में,
अगर आपने कंज्यूमर को सेल किया तो कंज्यूमर के पास जाके खराब हो जाएगा वो। नहीं तो नेचुरल तब तक वो अगर मेंटेन रहा तो कंज्यूमर के पास 2 4 5 दिन तक रह जाएगा, 6 दिन तक रहेगा। आपके घर की कंडीशंस कैसी हैं? हम लोग क्यों नहीं फ्लावर प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमारे घरों में इतना गर्म होता है, आज आप फ्लावर लेकर के आओ, मैक्सिमम अगले दिन खराब हो जाना, कितनी बढ़िया क्वालिटी हो, क्योंकि घर का टेम्परेचर बहुत है, 36 37 38 अगर है। और वही यूरोपियन कंट्रीज में आप जाइए, अमेरिकन कंट्रीज में जाइए, नॉर्मल टेम्परेचर 10 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ्लावर सस्टेन करेगा ज्यादा समय तक। तो जितना उस सिस्टम में आप रखेंगे, उस सिस्टम से क्लोज रखेंगे, उतनी उसकी लॉन्गेविटी बनी रहेगी, और जितना वो वेरिएशन आया उतनी दिक्कत करेगा। इसीलिए हम लोग रोज रोज घर में नहीं लाते हैं, वरना अगर आप बाहर जाके देखिए, बाहर के कंट्रीज में, वहां क्या करते हैं, शाम में आते हुए फ्लावर खरीद करके ले आए, घर में रखा, वो 10 दिन तक रह गया, उसके बाद हटा दिया उसको, तो उनको लगता है कि हाँ चल पैसा वसूल हो गया। जैसे उसको शाम मतलब दोपहर में हमने उनसे वो रखा, उन्होंने फ्लावर शाम तक हमारे पास मुरझा जाएगा, क्योंकि एक तो दोपहर में तोड़ने का टाइम गलत, उस टाइम टेम्परेचर हाई था, तो जितना वो हार्वेस्टिंग के टाइम या उसके प्रोडक्शन के टाइम टेम्परेचर रहेगा, दैट हैज गॉट एन इम्पैक्ट ऑन दी पोस्ट हाउस लाइफ। वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई 22 डिग्री तो आप उसमें रखोगे, तो वो एक जेनेटिक जो मेकअप है उसको इनऑर्डर कंडीशन से प्रमोट किया, वो उसकी लॉन्गेविटी बनी रहेगी। टोटल कूल चेन सिस्टम 100%। हार्वेस्टिंग स्टोरेज के बाद से, कोल्ड स्टोर के बाद से वो ब्रेक होना ही नहीं है, चाहे आप एयरपोर्ट में, एयरलाइंस में ट्रांसपोर्ट करें, चाहे शिप में करें, किसी में करें। आजकल क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रैक्टर में डाल के ले गए, हम लोग बस में डाल करके ले गए, खराब हो जाता है, वो क्वालिटी नहीं मिलती है आपको। लेकिन वही रेफ्रिजरेटेड वैन्स की बात होती है, उसमें लेके जाएंगे तो लॉन्गिविटी बनी रहेगी। अब हम दिन भर यहाँ पे बैठे रहें, हमें दिक्कत नहीं होगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है कंडीशन है, अगर यहीं पे भी 40 डिग्री हो जाए, सब भाग जाएंगे बाहर। बिल्कुल है, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही हैं और है, इसीलिए हम लोग क्लस्टर्स की बात करते हैं। जहां क्लस्टर बनेगा वहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट दे देगी, क्योंकि 50 फार्मर थे जो कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, कोल्ड स्टोर दे दो, एक रेफ्रिजरेटर वैन दे दो, कि उन सारों का चीजें निकल जाएंगी। लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपको अपने आप करना पड़ेगा, लेकिन दैट इज मस्ट, तो करते हैं लोग। और सर अभी जो फार्मर्स जाते हैं उनका ये टेक्निकल रोज के लिए अभी लीन पीरियड चल रहा है, तो उन्होंने उसकी जैसे बीज वाला था बेसिकली, लेबर वगैरह उसको पूरा हटा दिया कि वहां पे वो वही चीज है, जैसे मैंने आपसे कहा ना, हमने क्या किया, फ्लावर आ रहे थे, हमने उसको कहा कि भाई हटा दो, क्योंकि अभी सीजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई तीज त्योहार नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, फ्लावर लेके भी क्या करेंगे, और जो अगर आपने लेबर लगाई तो उसको तो पे करना ही है आपने, तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, और वो बंद कर देंगे, क्योंकि काफी पीरियड ऐसा होता है, डॉर्मेंट पीरियड भी होता है, उस टाइम मत दीजिए, फर्टिलाइजर लो कर दीजिए तो उसका प्रोडक्शन या उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, तो नेचुरल है, दैट वे यू कैन सस्टेन इट। और जहां जरूरत पड़ी आपने फिर फर्टिलाइजर दिया, ग्रोथ अच्छी आई, फ्लावरिंग आई, आपने मार्केट में भेज दिया। जैसे वैलेंटाइंस डे की कल बात हो रही थी, तो क्यों नहीं हम टारगेट करेंगे वैलेंटाइंस डे पे जाए, न्यू ईयर डे पे जाए, जहाँ पे हमें अच्छे प्राइस मिलने, रादर देन कि उसके बाद से प्रोडक्शन हमारा जाए। तो दैट इज द थिंग, यू हैव टू टारगेट दैट थिंग। एनी अदर क्वेश्चंस? Pardon? पॉलिनेशन एक्चुअली वो एक अलग सिनेरियो हो गया। जब प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो जब हमने बर्ड स्टेज में हार्वेस्ट कर लिया, तो पॉलिनेशन की तो कहानी नहीं आई, ठीक है। लेकिन दोज हु आर इनटू ब्रीडिंग, दोज हु आर इनटू गेटिंग न्यू एंड न्यू वैरायटीज, दे हैव टू गो फॉर पॉलिनेशन। उसके लिए आप बीज से भी कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं, हैंड पॉलिनेशन करते हैं, मैनुअल पॉलिनेशन किया जाता है, जिससे कि हम एक टारगेटेड वैरायटी, नई वैरायटी डेवलप कर सकें। लेकिन अधिकतर में तो आप देख रहे हो कि आपने बड़े स्टेज में ही हार्वेस्ट कर लिया, तो पॉलिनेशन वाली बात ही नहीं होती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। और कभी कोई